students, how are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Today, student, let's start the new chapter of class 3rd, which is chapter number 4 about the world of birds. So, students, birds are the most beautiful and the flying creatures of our nature, right? So, today we are going to discuss about their various and the distinct features which make them unique in this nature. Okay, let's start the chapter. Every day we see many birds around us. Okay, the pigeons, crow, parrots, and sparrows are a few birds that we see around us. Are not we all amazed how the birds fly? The student what they saying कि हम हर रोज अपने चारों तरफ different types of birds को observe करते हैं. उनमें से कुछ common birds हैं जैसे कि pigeon, crow, parrots and sparrow. ये कुछ few birds हैं which are commonly seen around us. But the question arises is that how does the birds fly? Okay, so we all have dreamt of flying like a bird, but we can't, right? Have you ever wondered why? What is so special in birds which makes them fly? See, हम सभी सोचते हैं कि हम सभी भी क्या कर सके, fly कर सके, but we cannot. But birds can fly. So now the question arises is that what is so special in birds? Birds में ऐसा क्या special है कि वो fly कर सकती हैं? तो इस chapter में we are going to explore the world of birds. So first of all, we are going to learn about the structure of body of a bird. So a bird's body is quite different from other animals. एक bird की body जो है किसी other animal से बिल्कुल different होती है. Okay, उनके जो body parts हैं वो differently shaped होते हैं. They have different body parts such as eyes, neck, beak, wings, feet, tail, feathers and claws. ये सभी different body parts हैं एक bird के which help them which help the bird in flight directly or indirectly. ये सभी body parts एक bird को fly करने में help करते हैं either directly or indirectly. You can see the bird's body part. This is the beak. Okay, this is the beak part. This is the eyes. This is the neck. ये neck है bird की. Okay, ये wings हैं. These are feet, claws, feathers, and this is the tail of the bird. Okay. The body of a bird is light in weight because it has hollow bones. This helps it to fly easily and for a long period of time. So students, एक bird की body light weighted होती है. Why? Because bird की जो bones है, okay, वो bones hollow है, अंदर से खोखली होती है, उनमें air filled होती है, and जिसकी वजह से इनकी body light weight हो जाती है, and they can easily lift up their body to fly high in the sky. Birds are the only living things that have feathers. See, birds अकेले ऐसे living beings हैं जिनके पास feathers होते हैं and ये feathers इनकी body को cover करते हैं, इनकी entire body को cover करते हैं. Okay, now there are 3 different kinds of feathers which are found on a bird's body. Okay, कितने 3 different types के birds की body पे feathers होते हैं. So let us discuss all of them. First of all, we have down feathers. So down feathers क्या है, ये स्मॉल एंड सॉफ्ट फेदर्स होते हैं जो स्किन के बर्ड की बॉडी के स्किन के काफी क्लोजेस्ट होते हैं एंड एक बर्ड की बॉडी को वार्म करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फेदर्स अ बर्ड हैज इज बॉडी फेदर्स. तो ये एज अ नेम सजेस्ट बॉडी फेदर्स कौन से फेदर्स हैं जो एक बर्ड की होल बॉडी को कवर करते हैं एंड उसकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं. एंड थर्ड वी हैव फ्लाइट फेदर्स. So ये feathers bird की tail and wings में present होते हैं and it helps the bird to fly. Now next we have how does a bird fly. So ये सभी तो birds की body के feathers हैं, different types of feathers. लेकिन actual में bird fly कैसे करती है? So student, first of all, the body of a bird is specially designed to fly. एक bird की body जो है वो एक differently shaped है, differently designed है to fly. एक्चुअल में एक बर्ड की बॉडी की शेप एक बोट की तरह होती है. ओके, दैट मीन्स व्हाट, नैरो एट द एंड्स, यानी कि एंड्स पे नैरो होती हैं एंड बॉटम मिडिल वाले पार्ट से थोड़ी ब्रॉड होती है. नैरो एट द एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडिल. ओके, सो ये बोट शेप्ड बॉडी को हम स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप भी बोलते हैं एंड इसी स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप की वजह से एक बर्ड जो है इजीली एयर को कट करके फ्लाई कर सकती है इन द एयर. Okay, the wings of the birds are used to fly. उसके अलावा birds के पास wings होते हैं जो उसे fly करने में help करते हैं.
बर्ड्स की मसल्स काफी स्ट्रांग होती हैं जिसके थ्रू वो अपने विंग्स को मूव कर सकते हैं। एंड उसके अलावा द बर्ड ऑल्सो हैज अ टेल, बर्ड के पास टेल भी होती है एंड बर्ड अपनी इस टेल का यूज करती है टू चेंज द डायरेक्शन while flying. फ्लाई करते वक्त अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए the bird uses its tail only. There are two main movements. So एक बर्ड के विंग्स के two main movements होते हैं जिसके थ्रू बर्ड टेक ऑफ करती है या टेक लैंड करती है. नंबर वन, अपस्ट्रोक. अपस्ट्रोक मीन्स व्हाट? द विंग्स मूव अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. जब विंग्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं यानी कि पीछे की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है लेकिन वो जाते हैं ऊपर की तरफ, उस मूवमेंट को कहा जाता है अपस्ट्रोक. एंड द अदर इज डाउनस्ट्रोक. डाउनस्ट्रोक में विंग्स जो है उनकी डायरेक्शन किस तरह की तरफ होती है? फॉरवर्ड की तरफ होती है लेकिन वो किसकी तरफ जा रहे हैं? डायरेक्शन में पीछे की तरफ. दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रोक. पीकॉक. पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. हमारे नेशनल बर्ड कौन सी है? पीकॉक है. एंड इस बर्ड को इसके डांस के लिए जाना जाता है, especially in the rains. Next unique feature the birds have is of beak. See, birds do not have teeth. Very important. Birds के पास teeth present नहीं होते हैं. Instead they have beak. उसकी जगह उनके पास beaks होती हैं. And beaks के head से ही birds क्या करती हैं? अपने food को catch करती हैं and they eat it with the help of their beaks. Now, different birds have different types of beaks suited to the kind of food they eat. तो हर एक different type of bird के पास different type of beak होती है जिसका birds use करके क्या करती हैं? अपना खाना खा पाती हैं. एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कोई भी बर्ड किस टाइप ऑफ फूड को खाती है, उसी अकॉर्डिंग उसके पास टाइप ऑफ बीक होती है. बिकॉज एवरी बर्ड डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, राइट? So first of all, the birds have short, hard and sharp beaks. So कुछ ऐसी birds है जिनकी beak कैसी है? Short, hard and sharp beak होती है. And इस type की beak एक bird को help करती है to crack and crush its food. अपने food को crack and crush करने के लिए, like seeds and nuts. So sparrow, pigeon and robin, these are the birds which have this type of beak. Second type of beak the birds have is sharp, strong and hooked beaks. Okay, so students, जो flesh eating birds है, that means जो दूसरे animals के flesh को खाती हैं, we call them flesh eating birds. And usually flesh eating birds की beaks ही strong, sharp and hooked होती है. Why? Because इस type के beak इन birds को help करती है to tear the flesh. Example, eagle, vulture, hawk, these birds have such kind of beak only. Now next they have is curved beaks. Okay, so curved beak help करती है birds को nuts and hard fruits को crack करने में. And हम इस तरीके की beak को easily parrots में commonly observe करते हैं. Okay, it also help them to climb the trees. Trees पे climb करने के लिए भी such type of birds such type of beaks helps the bird. You can see in this parrot, this beak, इस shape को particularly कहा जाता है curved. Next is strong and chisel shaped beak. So some birds are there such as woodpecker and hoopoe. Okay, woodpecker and hoopoe ऐसी birds है जिनके पास काफी strong and chisel shaped beaks होती हैं. And इस beak के through ये birds जो trees के bark होता है, trees के bark वाले part में hole करके अपने लिए nest भी बनाती हैं और उसके साथ साथ उनके अंदर insects को pick करके they eat also. Next, we have long and pointed beaks. Okay, see, birds like the hummingbird and sunbird. Okay, hummingbird and sunbird. ये ऐसी birds है जिनके पास long and pointed beaks हैं. You can see this such kind of. Okay, and this beak, ये जो beak है, इस type की beak, hummingbirds and sunbirds को help करती है to suck the nectar from the flowers. Next, we have spoon-shaped beaks. You can see this is spoon-shaped beak. Okay, so there is a bird spoonbill. You can see ये spoonbill bird है जिसके पास एक spoon shaped beak होती है. And इस beak के through bird easily tadpoles and small water animals, यानी कि छोटे छोटे जो water animals है या tadpoles हैं, उनको क्या pond water में से gather करके यानी कि इकट्ठा करके जितनी भी other water bodies है वहां से इकट्ठा करके खा सकती है. Then we have broad and flat beaks. Okay, so some aquatic birds, कुछ aquatic birds हैं यानी कि पानी के अंदर रहने वाली birds like ducks and grapes.
डक्स एंड क्रेन्स के पास ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती हैं, एंड इन बीक्स के साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर टिनी होल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ सच काइंड ऑफ बीक. ओके, सो द डक टेक्स इन मडी वाटर. सो डक एक्चुअल में मडी वाटर को पहले अपनी बीक के थ्रू इनटेक करती है, जिसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स एंड वर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस मडी वाटर, अभी जो मडी वाटर है वो इन होल्स के थ्रू बाहर आ जाता है, एंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अंदर रह जाते हैं, जिन्हें ये बर्ड्स खा जाती हैं. Next, we have types of birds. So, students, birds comes in a variety of shapes and sizes. सभी birds different shape and sizes की होती हैं, and majorly हम इन्हें two main categories में divide करते हैं. Number one, on the basis of flight, and secondly, on the basis of their feet and claws. तो सबसे पहले on the basis of flight, यानी कि कौन सी bird fly कर सकती है, कौन सी नहीं. इस behalf पर we have two types of bird. Number one, flying birds, and the other is flightless birds. So students, flying birds means what? The birds which can fly. वो birds जो easily fly कर सकती हैं. Okay, and ये fly क्यों करती है? Sorry, they fly to hunt for food. Okay, अपने food को hunt करने के लिए, अपने enemies से escape करने के लिए, बचने के लिए, bad weather conditions से खुद को protect करने के लिए, they fly. And the birds which fly, they are called flying birds. Okay, now secondly, we have flightless birds. So students, there are some birds. कुछ ऐसी भी birds हैं जो birds होने के बाद भी क्या नहीं कर सकती? They cannot fly. Okay, they have specially developed feature that help them to live on land, on water. क्योंकि वो fly नहीं कर सकती तो उनके पास कुछ अलग special developed features होते हैं जो उन्हें land and water पे survive करने में help करते हैं. So actually होता क्या है students? इनका जो body weight है वो काफी ज्यादा होता है. इनका body size बहुत ज्यादा है, body weight बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकती, एंड दे कैन नॉट फ्लाई. लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन, these are the birds which run very fast. Okay, sorry, ostrich and emu. Penguin is also a flightless bird, but it cannot run very fast. Okay, but if we take the example of ostrich and emu, so ostrich and emu both are flightless birds. They cannot fly, but they can run very fast. ये बहुत fastly run कर सकती हैं. If we talk about penguin, again it is a flightless bird, but it can swim very well. ये बहुत ज़्यादा अच्छे से swimming कर सकते हैं. Kiwi is also is what? A flightless bird only. And kiwis का जो sense of smell है वो बहुत अच्छा होता है. ये underground worms को भी बहुत easily find out कर सकती हैं. And all these birds are known as flightless birds. Okay? So these were the two types of birds on the basis of flight. Now we are going to classify the birds on the basis of their feet and claws. Okay, so students, birds have 2 feet. Birds के पास 2 feet होते हैं, जिनमें हर एक feet में 4 toes present होते हैं. And birds अपने feet and claws का use करती हैं to catch food, to protect themselves, and also to sit on the trees. So now different birds have different types of feet and claws, right? See, first of all, we have perching birds. So perching birds are the birds which have toes, and they help them to hold the branch of a tree very firmly, to rest or even to sleep at night without falling. तो students, कुछ ऐसी birds हैं जो क्या करती हैं, अपने claws and feet का use करके easily एक tree की branch को hold कर सकती हैं बहुत firmly, इतना ज़्यादा firmly कि वो उस पर बैठे बैठे, ठीक है, रात में सो भी जाती हैं without falling. इतनी strong grip होती है उनके toes की on that tree. तो ये इस एक्ट को कहा जाता है पर्चिंग, एंड सच बर्ड्स आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स. ओके, तो जनरली पर्चिंग बर्ड्स जो होती हैं लाइक पिजन, क्रो एंड स्पैरो, दे हैव 3 टोज. इनके फ्रंट में 3 टोज प्रेजेंट होते हैं, एंड एक टो जो होता है वो फीट के बैक साइड प्रेजेंट होता है. ओके, दीज टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच टू होल्ड इट्स फर्मली. एंड इस टाइप के जो टोज हैं वो क्या करते हैं, ब्रांच को इस तरीके से कर्ल करके होल्ड करके रखते हैं फर्मली, सो दैट दे डू नॉट गेट फॉल while sleeping at night. Next, we have praying birds. Okay, secondly, हमारे पास praying birds होती हैं जिन्हें हम flesh eating birds और birds of prey also we can call them. So there are some birds like eagle, hawk, vulture, owl. ये सभी praying birds हैं. इनके पास काफी strong and sharp claws होते हैं for catching and tearing the flesh of small animals. यानी कि छोटे छोटे animals के flesh को पकड़ने के लिए, tear करने के लिए इनके क्लॉज जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं. ओके, दे कैन इजीली ईट फ्रॉग्स एंड रैट्स बाय कैचिंग देम.
दे स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, क्योंकि इनके क्लॉज काफी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इस टाइप के स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज को वी कॉल टेलॉन्स. ओके, these birds are also known as flesh eating birds. As I have told you, इन birds को हम flesh eating birds और birds of prey भी कहते हैं, because ये other animals के flesh को usually खाती हैं. Then next we have scratching birds. So scratching birds के example है hen, peacock, quail. Okay, and ये अपने feet का use करती हैं to dig the ground. Okay, ground को dig करने के लिए, so that they can easily find buried seed and insects over there. The two have 3 toes. इनके पास भी क्या फ्रंट में 3 toes and एक toe इनके at the back present होता है with very sharp claws. Okay. Now next we have climbing birds. So climbing birds कौन सी हैं? They are parrot and woodpecker. Parrot and woodpecker are the examples of climbing birds. They have 2 toes. इनके पास 2 toes होते हैं जो upward point करते हैं, and 2 toes की जो position होती है वो downwards होती है. एंड ये बर्ड्स अपनी टोज का यूज करते हैं टू क्लाइंब अप एंड टू ऑल्सो होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ट्रीज पे क्लाइंब करने के लिए, ट्री की ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए दे यूज देयर टोज ओनली, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव wading birds. The birds that can walk over shallow water are called wading birds. अब ऐसी birds जो कि shallow water पे easily walk कर सकती हैं, they are called wading birds. Example crane and heron. ये आपकी वेडिंग बर्ड्स या वाटर बर्ड्स है जिनके लेग्स काफी लॉन्ग होते हैं एंड उनके टोज बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होते हैं. ओके, एंड इस टाइप के फीट एंड टोज ही इन्हें हेल्प करते हैं टू वॉक थ्रू वाटर. नेक्स्ट वी हैव रनिंग वाटर. ओके, सो रनिंग बर्ड्स आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स, यानी कि वो बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं कर सकती. उनके पास एक स्पेशल डेवलप फीचर है दैट दे कैन रन वेरी फास्टली, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज रनिंग बर्ड्स. ओके, इनके लेग्स काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग. ऑस्ट्रिच, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक रनिंग बर्ड है. इट कैन नॉट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं कर सकती है, एंड इट इज द ओनली बर्ड, ये एक अकेली ऐसी बर्ड है जिसके 1 फुट में कितने 2 टोज प्रेजेंट होते हैं. Flightless birds. See students, as I told you कि flightless birds generally काफी heavy होती हैं and therefore they cannot fly. There are some more examples of flightless birds, that is kiwi and emu. This is kiwi bird, this is ostrich, and in the last page we have seen the emu bird also. All these are flightless birds. Now next we have aquatic birds or swimming birds. ठीक है, तो aquatic birds, कुछ aquatic birds कौन सी birds होती हैं जो इन द वाटर सर्वाइव करती है. ओके, लाइक डक, गूस, स्वान, यानी कि पानी के अंदर भी रहती हैं या पानी के ऊपर रहती हैं. दैट इज डक, गूस एंड स्वान. इनके फीट वेब्ड शेप फीट होते हैं सो दैट दे कैन इजीली स्विम इन वाटर. यू कैन सी दिस इज द शेप ऑफ अ वेब्ड फीट. ओके, सी दे हैव 3 फ्रंट टोज. इनके 3 फ्रंट टोज होते हैं. किसी 1 2 3 फ्रंट टोज हैं एंड एक टो एट द बैक प्रेजेंट होता है. एंड ये तीनों फ्रंट टोज जो है एक स्किन के थ्रू जॉइंट होते हैं जो एक वेब लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. जैसे सेंटर में क्या है, एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर है जिन 3 टोज को जो फ्रंट में प्रेजेंट है इन्हें जॉइन करता है, एंड यहाँ पे एक अपीयरेंस जो है एक वेब लाइक अपीयरेंस आती है. द वेब्ड फीट हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर व्हाइल स्विमिंग. एंड ये जो शेप है वेब्ड फीट शेप, ये इन बर्ड्स को हेल्प करती है व्हाइल स्विमिंग टू पेडल एंड टू पुश द वाटर. पेंगुइन एग्जाम्पल एक और गिवन है. पेंगुइन भी एक दूसरी फ्लाइटलेस बर्ड है, बट इट डज नॉट रन. ये रन नहीं कर सकती, भाग नहीं सकती है. पेंगुइन केवल स्विम करती है. ऑस्ट्रिच हैज द लार्जेस्ट आई अमंग ऑल द लैंड एनिमल्स, दैट इट इज एज बिग एज अ बिलियर्ड्स बॉल. सी ऑस्ट्रिच की जो आई है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है जितने भी लैंड एनिमल्स है सबके कंपैरिजन में. ओके, एंड जैसे एक बिलियर्ड्स बॉल है इतनी बड़ी एक ऑस्ट्रिच की आई का साइज होता है. So these were the different feet and claws of different birds. Now next we are going to talk about nesting habits of birds. So like human beings, see human beings की तरह birds को भी एक home की requirement है to live, rest and also to protect themselves from the enemies and harsh weather condition. Okay, इसके अलावा एक home जो है bird को help करता है टू ले द एग्स. ये अपने एग्स कहाँ ले करती हैं, अपने होम में ले करती हैं, एंड अपने एग्स को
एंड अपनी नेस्टलिंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एनिमीज एंड वेदर विद द हेल्प ऑफ देयर नेस्ट ओनली. So the birds build nests in safe places. So usually birds जो अपने नेस्ट बनाती हैं वो किसी सेफ प्लेसेस पे बनाती हैं. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड एक डिफरेंट टाइप का नेस्ट बनाती हैं. अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को यूज करती हैं. लाइक दे यूज ड्राई लीव्स, वूल, पीसेस ऑफ क्लॉथ, ट्विग्स एक्सेट्रा. ओके, सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स नेस्ट. सी अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ बर्ड्स नेस्ट जो है डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 वी हैव स्पैरोज नेस्ट. तो ये स्पैरो है, स्पैरो बर्ड, और ये इसका नेस्ट है. तो स्पैरो जनरली अपना नेस्ट हाउस, ट्री या किसी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस पे बनाती है. इसका नेस्ट जो है स्पैरो का, इट इज जनरली राउंड इन शेप एंड फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट स्पैरो यूजेस ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉज एंड कॉटन. देन वी हैव पिजन्स नेस्ट. तो पिजन अपना नेस्ट ट्विग्स एंड स्ट्रॉज की हेल्प से बनाती है. देन वी हैव टेलर बर्ड. So students, tailor bird stitches 2 broad leaves together with the help of its beak and uses the structure as its nest. तो स्टूडेंट टेलर बर्ड 2 ब्रॉड लीव्स यानी कि 2 लीव्स देती हैं जो काफी ब्रॉड है एंड उनको अपनी बीक की हेल्प से स्टिच करती हैं आपस में एंड उसी स्ट्रक्चर को एज अ नेस्ट यूज करती हैं. ठीक है. सो लीव्स को स्टिच करने के लिए जनरली कॉटन, हेयर या वूल का यूज किया जाता है बाय द टेलर बर्ड. देन नेक्स्ट वी हैव वीवर बर्ड नेस्ट. ओके, you can see this is the weaver bird and weaver bird सबसे ज्यादा beautiful nest बनाती है with twigs and grass. Okay, the entrance is nest की जो entrance होती है वो एक tunnel like opening की तरह होती है and nest के bottom वाले part में होती है यानी कि नीचे वाले part में होती है. and ये जो nest होता है किसी एक tree की branch से नीचे की तरफ hang करता है, such like this you can see in the picture also. Okay. Next we have woodpecker's nest. You can see this is a woodpecker's nest. तो woodpecker usually अपना nest किसी एक old या dead trees के trunk वाले पार्ट में बनाती हैं. ओके, कैसे बनाती हैं? उस ट्री के ट्रंक को अपनी बीक के थ्रू क्या करके, पैक करके, राइट. अपनी चिजल लाइक बीक का यूज करके वुडपेकर पहले उस ट्री की ट्रंक वाले पार्ट में होल बनाती हैं एंड उसके बाद कुछ वुड चिप्स को यूज करके उस नेस्ट की लाइनिंग बनाई जाती है सो दैट जो नेस्ट है वो कोजी रहे. देन नेक्स्ट वी हैव पेंगुइन्स नेस्ट. तो पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. पेंगुइन्स बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं एज इसीलिए उनको अपने नेस्ट बनाने के लिए ट्विग्स, ग्रास एक्सेट्रा इन प्लेसेस पे नहीं मिल पाते हैं एंड देयरफॉर दे कलेक्ट सम पेबल्स. इसीलिए वो वहां पे क्या कुछ पेबल्स एंड स्टोन्स को कलेक्ट करके उन्हीं का यूज करके अपना नेस्ट बनाते हैं. ओके, ईगल्स नेस्ट. एंड ईगल्स नेस्ट इज मोस्टली फ्लैट. एक ईगल का नेस्ट जो है मोस्टली फ्लैट होता है. ये लार्ज ट्री टॉप्स पे प्रेजेंट होता है. ट्री जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके टॉप वाले पार्ट्स में यूजुअली ईगल अपना नेस्ट बनाती है. क्रो एंड वल्चर भी इसी टाइप के नेस्ट बनाते हैं. See, a cuckoo does not make its nest. कुकू एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती. It lays in a crow's nest. ये अपने एग्स को क्रो के नेस्ट पे ही ले करती है एंड क्रो ही बेबी जो है, बेबी कुकूज को भी कौन ध्यान रखता है? उनका क्रो ही ध्यान रखता है. ओके, नाउ केयरिंग फॉर द यंग वंस. See, the mother bird lays eggs and sit on them to keep them warm until they hatch into young. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में पहले मदर बर्ड अपने नेस्ट में एग्स ले करती है एंड उनके ऊपर बैठकर उनको वार्मनेस प्रोवाइड करती है जब तक उन एग्स के थ्रू उनकी बेबीज बाहर हैच होकर नहीं आ जाते हैं. बोथ द पेरेंट्स, इसके बाद दोनों ही पेरेंट्स अपने बेबीज को एनिमीज एंड बैड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं एंड जब बेबीज एग से बाहर आते हैं तो वो बेबीज यूजुअली वीक एंड हेल्पलेस होते हैं. उनकी आईज क्लोज होती हैं एंड देयरफॉर जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनकी केयर करते हैं until and unless they grow up and they are able to fly properly. Okay, the parents bird, actual में parents bird ही हैं जो अपने young ones को feed करती हैं जब तक they do not become old enough to feed themselves. यानी कि जब तक वो खुद इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो खुद से अपने खुद को फीड ना कर सके तब तक उन young ones की केयर करी जाती है, फीड किया जाता है by the parent birds, right? These young birds leave the nest once they grow up and can fly on their own. And जैसे ही ये young birds क्या करना, फ्लाई करना सीख जाती हैं, खुद को फीड करना सीख जाती हैं, तो ये उस नेस्ट को छोड़कर चली जाती हैं. ओके, एंड उसके बाद वहां पे लौटकर नहीं आती.
Migration of birds. Some birds fly from one place to another in search of a suitable climate and food. सी स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लाई करके जाती हैं एक अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड की सर्च में, एंड जनरली वो एक कोल्ड प्लेस से वार्म प्लेस की तरफ फ्लाई करती हैं. आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ वीक या फ्यू मंथ्स के बाद वो बर्ड्स अपने ओरिजिनल प्लेस पे रिटर्न करती हैं फॉर द नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग. एंड इस ईयरली मूवमेंट को वी कॉल व्हाट? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स. ओके, सो the chapter is completed over here. That was all about the world of birds which we have discussed in this chapter. Okay, we have discussed their various features which makes them the unique creatures in the world and also helps them to fly. Okay, so let's meet in the next session with the new and exciting topics. Till then, keep going well and thanks to everyone.